and welcome to another episode of आप और हम सौरभी के संग। और आज जो गेस्ट मेरे शो पे हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। शी इज़ अ वर्सेटाइल लेडी। उनके पास एक डिग्री नहीं बल्कि कई डिग्री। मैं उनके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। शी इज़ अ लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर, डीएमआईटी एक्सपर्ट, education consultant. And that's not all, my dear friends. She is also MPhil and PhD in area studies from University of Mumbai. So I welcome Dr. Vinita Hede to my show. Welcome, doctor, to my show. Hey, thank you. Thanks for inviting me, first of all. And it's pleasure to meeting you here on this show. Thanks a lot. Yes, I'm yes, eagerly ma'am. waiting to do this. Thanks. Yes. So I would like to tell the audience that despite so many degrees, she is also having a MBA degree in international business, and she is also having experience of more than 10 years into corporate. आपका मेरे शो पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के बौछार आपके ऊपर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतनी सारी डिग्रियां के पीछे क्या कारण है? वाई यू हैव टेकन सो मेनी डिग्रीज? दिस रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर अ पर्सन हु लव्स लर्निंग, बट ये मेरा अजम्पशन है। सो आई वुड लाइक यू टू टेल आवर ऑडियंस वाई सो मेनी डिग्रीज विथ यू। See, it's not only about the degrees, it's about the interest basically. Because I love learning. I'm a lifelong learner for sure. And whenever a subject interests me, I just go dive deep into it. So the degrees doesn't matter. Whatever degrees I have, it really doesn't matter. But what more I love to do it is I love learning. Whatever new things comes up, I just love it. And the only thing, the way learning is getting into that subject very deeply, that through some kind of courses. Because when you are in on courses, you definitely you have that this thing in mind. You know, I paid for this, I have to do it, I have to do it. You can't leave in between. So this is why my theory about doing all these things. Yes, so thank you so much for telling our audience why so much degree. But to add on to it, I would like to tell everyone that we insist on gaining knowledge and we ask everybody to gain knowledge. And here we have Dr. Vinita with us, who is already having so much degree with her just because of a single reason, because she's a master student and a lifelong learner. So, to our audience, I would like to tell them that today's episode is going to be very exciting because today we are not going to talk on life coaching, on NLP, or about any corporate experience of Vinita ji. But we are here for a very special topic, and that is DMIT. So, I would like you, Dr. Vinita, to tell our audience something about DMIT test, what it is, and why it should be done. Sure. So first of all, DMIT is about dermatographic multiple intelligence test. This can be done for any person at any age. From the age of 3 years to age of 65, you can get it done. The thing is, like, these things are important. The multiple intelligences or your inborn talents are more important because whatever we are right now, it's because of our environment. The field which you chose as in as your occupation or your lifelong thing, that may not be in align with whatever your inborn talents are. So sometimes what happens at the age of 30 or 35, you feel a kind of emptiness. You know, you have a very successful career, you have everything in at your home, you do everything, whatever it's good for you, you already have with you, but still you have that emptiness inside. कुछ तो missing है, कुछ है जो नहीं हो रहा है. So this report tells you what is that all about. What are your inborn talents? Because it's basically about your fingerprints. We do the fingerprints analysis. Whenever I do the DMIT test, all I want is your fingerprints. That's it. I don't ask you what are you doing right now, what is your future or anything. Nothing.
I just ask you to give me your fingerprints. On those fingerprint basis, I get you the report, and the report shows you what are your inborn talents, what are you good at since beginning, and then you can think about those kind of careers if you want to willing to go for a career change. For students or for children, it's basically get to know about your learning styles. Each child is not similar. The way we are teaching in our education system, where all children are sitting in the same area and teacher is telling them all the things, not each person is same kind of learner. Some are auditory, some are visual, some are kinesthetic. कोई कोई लोगों को ना कुछ जब सामने वाला कर रहा है तो वो सामने से खुद से हाथ से करेंगे ना तो ही उनको वो फील आता है कि हाँ मुझे कुछ समझ में आया. Some people are like, some children are like कि वो लोग को जब आप सिर्फ सुनाते हो कुछ बोलते हो they realize कि हाँ अच्छा ऐसा करना है ऐसा करना है. Okay, some are visuals, whatever the teacher is doing they're just seeing this and okay I got it. So these are the very different learning styles for each student. और अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है अभी की एट द मोमेंट उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस. हम लोग सब बच्चे लोग को एक ही स्टाइल में पढ़ाते हैं. तो व्हाट हैपेंस, कोई बच्चा बहुत अच्छा डिग्री मिल जाता है, कोई बच्चे को बहुत कम मिलता है. दैट डजंट मीन कि उसको वो बच्चे को वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है. स्पेसिफिकली मैथ्स एंड साइंस, there are plenty of students who are saying कि we are not interested in maths, हमको तो मैथ्स आता ही नहीं है. It's not about maths, it's about your learning style. The teacher who is teaching you so far is not able to understand your learning style is different. She is not able to teach you that way. So you think maths मुझे आता ही नहीं. Secondly, it's conditioning from your environment. मे बी आपके घर में मम्मी पापा है, कुछ बड़े लोग हैं, दे कीप ऑन सेइंग कि अरे नहीं मैथ्स तो मेरे बस का बात नहीं था तो मेरा जेनेटिक्स मेरे बच्चे में आया. ही कीप ऑन थिंकिंग कि हाँ बचपन से यही सुनता आ रहा है वो बच्चा कि हाँ मेरे घर में तो किसको मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता, मेरे घर में किसको मैथ्स. तो अगर उसका मैथ्स अच्छा भी है he will not score much. Okay. So what I do in DMIT, not only when I counsel people or children specifically, I not only counsel them for their learning styles or for their multiple intelligences, I also try to give them the extra knowledge of NLP, the limiting belief patterns and other things. How to think, what affirmation you should use to overcome your limiting beliefs. So whatever knowledge I gathered with several other modalities, sub-modalities, I use that into my counseling as well, DMIT counseling as well. So basically this is about the DMIT. The other part of the DMIT is about multiple intelligences. All of us having 8 or 9 multiple intelligences. Some people are naturally, some are very good at certain things, some are very good at other things like intrapersonal or interpersonal. Some are very good at communicating with others. Some are comfortable with themselves, they don't want to talk in public. So on that basis you have to select your careers. If you are intrapersonal, अगर आपको सिर्फ खुद के साथ बातें करना पसंद है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है, and you wanted to become a communicator, public speaker, how will that possible? Right? So either you have to module yourself in that way, or कोई ऐसा option ढूंढो जिसमें आप खुश हो. It's not about it because ये age ऐसा है कि जहाँ पे you have plenty of options. And unfortunately, because of plenty of options, हम जो parents है अभी के age के, जो millennials parents है, they try to get their kids into everything. सुबह स्कूल में जाओ, फिर आके क्लासेस में जाओ, डांस क्लास, कराटे क्लास. अरे लेकिन वो बच्चे को पूछो तो मेरा बच्चा तो कराटे में कुछ, अरे लेकिन उसके फाइन मोटर स्किल्स है क्या वैसे अच्छे? Is he good at gross motor skills to take him to dancing? If not, then it's of no use. वो बच्चे को वो burden हो जाता है. Just because the other kid is doing, it's not necessary that your kid is supposed to do this, right? आप आपके बेटे के ये पहचानो. For this DMIT report helps you. It gives you the entire list of hobbies, the entire list of careers, and everything whatever you ask for. हम लोग जो कुंडली कराते हैं हमारे रिलीजन में, जो कुंडली का ये रहता है कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या करना है, राहु का है, केतु का है. Rather than that, do this. This will give you more benefits than your कुंडली.
I'm not saying कि कुंडली is bad और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ये है, not like that, but do this as well for your kid, for their future. सो आपसे बात करते करते मुझे बिल्कुल थ्री इडियट्स का वो सीन याद आ रहा है जिसमें आर माधवन वांटेड टू गो फॉर फोटोग्राफी और उसके फादर फोर्स कर रहे थे इंजीनियरिंग परस्यू करने का। तो ऐसा अभी हम अपने बच्चों के साथ या जो अभी 12th पास बच्चे हैं उनके पेरेंट्स करते होंगे, तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर आप फिश को बोलोगे कि वो रन करे और हॉर्स को बोलो कि स्विम करे, तो मुझे आपसे बात करके ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि you are asking somebody to do something that is not the inborn talent of that person. That's why doing a DMIT test is essential. So, and to add on to it, I would like to say that it's a proof कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी दो लोग के एक नहीं है, इवन बायोमेट्रिक्स एक नहीं है। दैट इज अ इंडिकेशन इन इटसेल्फ दैट यू आर बॉर्न यूनिक एंड स्पेशल। और हर एक इंसान अपने आप को जाने, अपने इनेट को पहचान के वही लाइन करियर परस्यू करे तो उसमें वो एक्सेल करेगा। इसलिए DMIT टेस्ट इज एसेंशियल। एंड वन मोर थिंग आई लर्न टुडे एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ माई ऑडियंस। अभी तक मुझे लग रहा था बहुत से बहुत 2 या 3 इंटेलिजेंस क्राइटेरिया होंगे, बट अभी विनीता जी ने जैसे मुझे बोला कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्राइटेरिया होते हैं एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 8 to 9। तो बहुत वाइडर ब्रैकेट है जिसको हम पेरेंट्स बहुत नैरो करके चलते हैं, इसलिए DMIT टेस्ट बिकम्स एसेंशियल। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले मैम आप प्लीज यहाँ पे जो ऑडियंस है उनको DMIT का फुल फॉर्म बता दीजिए। और DMIT और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, क्या ये दोनों एक ही चीज है? Yes, DMIT stands for Dermatographic Multiple Intelligence Test, and brain mapping is similar on that platform. But this DMIT is more useful because it shows you about the multiple intelligences, about your personality as well. We all have 4 kind of personalities. उसमें से 2 we have as a primary और secondary, all of us. तो आपका पर्सनालिटी अगर आपको मालूम है, इफ यू आर स्टडी पर्सनालिटी, देयर आर 4 kind of personalities like dominant, influential, steady and compliant. सब जमता है, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर ले तो। बट इन योर इनसाइड यू आर नॉट गुड एट योरसेल्फ। यू फील लाइक कुछ तो क्या कर रहा हूँ मैं, सबको खुश करने के चक्कर में मेरा तो खुशी गया, किधर तो गया, पता ही नहीं चल रहा है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट। सो अगर कोई डोमिनेंट नेचर का पर्सनालिटी है, सो उसके साथ क्या होता है कि वॉट एवर ही सेज इज द, मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया, खत्म, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसी 2 कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटीज सामने सामने है तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, दैट DMIT टेस्ट गिव्स यू द रिजल्ट्स ऑफ। अगर आप डोमिनेंट पर्सन है और सामने वाला स्टेडी है, सो ये डोमिनेंट पर्सन को किसी चीज के लिए मनाना है तो कैसे मनाना है, व्हाट टेक्निक्स यू सपोज टू यूज, उसकी वीकनेसेस क्या है कि जिसके ऊपर आप फोकस करके उसको मना सकते या कुछ करने के लिए बोल सको, दैट टीचेस बाय DMIT। Your personality, it also shows about the other personalities. So in your daily communication with others, you get more clarity कि हाँ मुझे ये पर्सनालिटी का बंदा है, इसके साथ मुझे not only for sales, it's for parenting as well. If you know that your kid is auditory kid, कि उसको जब आप सुनोगे, आप उसको सुनो, listen, ऐसे words बोलोगे तो ही वो सुनता है। If you know this and you know his personality कि हाँ he is थोड़ा सा influential kind of person है, so that way you can handle that kid, that way you can handle the other person. So this is very good to do. वाओ, सो मच नॉलेज बिल्डिंग हियर। जैसे मेरा भी बहुत सारा डाउट क्लियर हो रहा है। मैंने नेट पे बहुत कुछ पढ़ा था बट इतनी डिटेल में मुझे भी नहीं पता पड़ा था। आई थॉट इट्स मोर फॉर करियर, कि करियर को लेके आगे जाएंगे। तो मैम आप यहाँ पे एक चीज और बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या DMIT सिर्फ करियर को लेके आगे, आपने जैसे पेरेंटिंग कवर कर लिया, बट पेरेंटिंग के अलावा, पेरेंटिंग और करियर के अलावा ये DMIT टेस्ट और कहाँ हम इसका यूजेज कर सकते हैं? This can be used for any individual in any endeavor. Like if you want to go with business, this is useful because ये आपको बताएगा कि आपका अगर कोई भी बिजनेस फील्ड आप चूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या
क्वालिटीज है और कौन सी क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है। एनी बिजनेस जहाँ पे आपका कंटिन्यूसली लोगों के साथ कांटेक्ट है, लाइक कोचिंग, यू हैव टू डील विद पीपल। आप इंटर स्मार्ट हो, आप इंट्रा स्मार्ट हो, दोनों भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बाकी का क्वालिटीज उतना नहीं है, आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका एम्पैथ इतना स्ट्रांग नहीं है कि दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस, so in that field you need to focus on more on those qualities. So ये रिपोर्ट में जब आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कहाँ पे है, साथ में आपको एक्सरसाइजेस दिया गया है कि क्या करके आपका स्कोर आप बढ़ा सकते हो, so that would be easier for you. It's okay if you are having that career, just because you are very much interested in that, definitely you can pursue that. In fact, this is not a benchmark kind of thing. DMIT अगर उसमें लिखा है कि एक पर्टिकुलर करियर आप परस्यू नहीं कर सकते, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप परस्यू कर सकते हो, बट अगर बाकी लोगों को वो करियर के टॉप पे जाने के लिए 2 साल लगता है, आपको शायद 5 साल लग जाएगा, डबल टिबल मेहनत करना पड़ेगा, राइट? सो आइदर यू कैन डू दैट और एल्स यू कैन चेक ऑन दी अदर करियर्स कि जिसके साथ आप उसको भी, वो जो करियर आप करना चाहते हो उसको कंबाइन करके कुछ और करो जिसमें आप इनिशियली बहुत अच्छे हो। फॉर इंडिविजुअल्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, अभी तो बहुत सारा एजेंसीज ने ये चालू किया है कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब दे डू द DMIT टेस्ट, सो दे गेट टू नो कि ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर रोल के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके लिए आप परफेक्ट हो के नहीं। इट्स ओके, योर रेज्यूमे स्टेट्स कि आपने ये किया हुआ, ये एक्सपीरियंसेस है, लेकिन आप क्रिटिकल पोजीशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाता है तो क्या आप उसको निभा सकते हो, क्या आप उसको ठीक से कर सकते हो, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो इट्स एवरीथिंग कवर्ड अप इन दिस, एंड स्पेशली आई वुड रेकमेंड कि ये हर किसी को इसके लिए करना चाहिए, फॉर द रीजन दैट यू गेट टू नो, मे बी यू आर एज ऑफ 40-45, आप तो बोलोगे कि अभी तो मेरा सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ है, क्या करना है मुझे कर, बट यू गेट टू नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू, पर आपने क्या मिस कर दिया। KFC के जो हेड है, KFC who started at 65, there are plenty of examples around us कि जहाँ पे लोगों ने 50s या 60s में उनका नया करियर स्टार्ट किया, राइट? हम लोग क्यों पीछे रहे जब हम लोग कर सकते हैं? एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि मुझे इतने सारी चीजों में इंटरेस्ट की, बिकॉज आई हैव दैट इनबॉर्न टैलेंट, वो मेरा एक आज पैटर्न कैन डू एनीथिंग, if I'm curious I'll do it, so that is also another thing for me, so that's the reason I took it up कि मैंने इसको आगे लिया, आगे किया, because I really felt कि जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचता है, जितने ज्यादा लोग इसको लेते हैं, they are getting benefited out of it. हमारा तो अभी हो गया, but the other people are there, there are plenty of people are there who comes for life coaching, they have mid career crisis at the age of 30, they have several kind of emotional imbalances, they have, and then they come to you and ask you कि अब मैं क्या करूं. Yes. And the best way to get to know a person from the basics is DMIT. Otherwise आप अगर काउंसलिंग भी करो तो you going to take at least, even if you are very good at it, you going to take at least 2 to 3 sessions to understand कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. So the thing is like for coaching and other things, हम लोग जो करते हैं कोचिंग में, जहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस के पीपल आते हैं, so उनके लिए दिस थिंग इज वेरी यूजफुल, बिकॉज जस्ट लाइक अ डॉक्टर सेज कि हाँ ये एक्सरे निकाला, उससे पता चला कि आपका यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे ये, द सेम वे आई कैन टेल यू कि हाँ आपका जिंदगी में यहाँ पे फ्रैक्चर है, you have to align this. So accordingly you can take up your career choices, accordingly you can take up the kind of relationship, और specifically for relationship, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो पर्सनालिटीज है अगर क्लैशेस हो रहा है तो डेफिनेटली अपने पर्सनालिटीज में डिफरेंसेस है फॉर द पार्टनर्स. व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, सो अगर उसमें डिफरेंसेस है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ यू बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटी, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो. सो इन दैट केस इफ यू टेकन द DMIT, you get to know कि सामने वाला कैसा पर्सन है and how are you supposed to react, rather than react, you how you supposed to respond. So that is the major benefit of DMIT for individuals.
यस, एंड आई विल अपोलोजाइज टू द ऑडियंस। आज थोड़ा ग्लिच है सिस्टम में, क्योंकि बारिश दिल्ली में भी हो रही है और मुंबई में भी हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो में कहीं कहीं ग्लिच हो। एक्सक्यूज अस फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, लॉन्ग टाइम प्लान था तो करना ही था। सो मूविंग अहेड, विनीता जी, आपसे बात करके मुझे और एक क्वेश्चन दिमाग में आया, एंड दैट क्वेश्चन इज कि देन इवन इन बिजनेस पार्टनरशिप वी कैन गेट द फिंगरप्रिंट डीएमआईटी डन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। क्योंकि कई बार होता है कि हम बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, बट बाद में पर्सनालिटी क्लैश हो जाती है। तो इवन फॉर, अगर हम न्यूअर एज के इस टेस्ट को मान रहे हैं, न्यूअर एज मिलीनियर पेरेंट्स मान रहे हैं, और वी आर ऑल बिलोंग टू द न्यू एज, तो will you recommend us ki even for business associations we should get this test done so that everything goes really smooth and well in future, और किसी को भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो आगे चल के कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी क्लैश दिस बिजनेस वाज नॉट वर्किंग। सो some insight on this. Yes, definitely you should go for that. Not only for the personality clashes, but also for that if the other person is really capable of doing it. It's not only the personality clashes, but अगर आपको आपका पार्टनर आप जब चूज करते हो बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली, so his values should be aligned to yours. हम लोग वैल्यूज में क्या क्या लेते हैं कि जैसे कि हाँ वो ये है, बहुत ऐसे डील करता है लोगों के साथ, या फिर ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन, हम लोग ये सब देखते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि इज दिस पर्सन इज रियली कैपेबल, उसका करियर चॉइसेस में ये आ भी रहा है कि नहीं, or just because he is thinking it's good for us or something, that's why he is entering into it, or sometimes just for the sake of money people are entering into this kind of partnerships. तो अगर वैसा कुछ है, so obviously personality clashes बाद में जाके आएंगे, क्योंकि आपका motives ही same नहीं होगा. So for that reason also you're supposed to do this, because this gives you the clear idea कि आपके साथ में जो पर्सन है, जिसके साथ आपको कम से कम दिन का 7-8 घंटा साथ में बिताना है, अगर वो चीज से आपके वैल्यूज के साथ, आपके आइडियोलॉजी के साथ मैच है कि नहीं है. That is also you come to. In fact, for your employees also, when you are selecting your employees, you can get it done for them, because it's hardly cost you. It's like if you go for a Pizza Hut with your family, एक बार जाओगे तो आराम से 5-6 हज़ार खर्चा हो जाएगा, उससे तो कम ही है ये. And this is lifelong report, just not like the psychometric test वगैरह जो हम लोग कराते हैं. Basically the psychometric test, what happens, when you go for a psychometric test, when you take on the questions, और जब आप आंसर्स लिखते हो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, that point of time आपके दिमाग में जो थॉट्स है आप उसके हिसाब से आंसर्स लिखते हो, और इवैल्यूएशन उसके ऊपर होता है. अगर मैं आज साइकोमेट्रिक टेस्ट देती हूँ तो उसका रिजल्ट, और 10 दिन के बाद में सेम टेस्ट दूँ, सेम क्वेश्चंस दूँ, तो उसका रिजल्ट कैन बी डिफर. दिस वोंट हैपन विद डीएमआईटी. ये एक बार आप निकालो 3 साल की उम्र में, एंड तक आपका वही रिजल्ट रहने वाला है. तो व्हेनेवर यू फील कि अगर मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ ये नहीं दिख रहा है, गो बैक टू योर रूट्स, रिपोर्ट चेक करो, उसमें से क्या मिसिंग है, क्या नहीं किया है आपने, क्या कर सकते हो, एंड देन मूव फॉरवर्ड. व्हाई वेस्ट टाइम ऑन डूइंग सर्टेन अदर थिंग्स. ट्रायल एंड एरर मेथड से अच्छा है तो ये वैल्यूएबल आपके पास ऑलरेडी है. Yes, yes. Yes, there is a scientific approach available in today's age. So people do make use of this test to find what is really your innate talent so that you can take this ahead. While talking to you, I had one more question. Generally हम ऐसा परसेप्शन लेके चलते हैं कि बच्चा डांस अच्छा कर रहा है तो बच्चा अच्छा कोरियोग्राफर बन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू डीएमआईटी एक्सपर्ट्स दिस कैन बी अ बिग क्रॉस, अ रॉन्ग साइन. जरूरी नहीं है कि वो डांस में अच्छा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए डांसिंग फ्री स्टाइल कर रहा है वो अच्छा है, बट कोरियोग्राफी के लिए अच्छा नहीं है. बट ये जनरल परसेप्शन है, मेरा बच्चा अच्छा डांस करता है तो वो कोरियोग्राफर बनेगा. तो
इस पे आप इंसाइट दीजिए कि व्हाट आर द टू स्किल्स दैट मैटर्स इन बोथ. देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. Yes, absolutely. Specifically for dancing industry के लिए अगर हम लोग देखें तो there are plenty of kids who are getting into dances. डांस स्कूल में जाते हैं, डेली के लेसन्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं. एंड मे बी दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड बिकॉज देर आर सेवरल रियलिटी शोज गोइंग ऑन टीवी स्क्रीन पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं. तो पीपल आर थिंकिंग कि ये इसका बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं, ही कैन बी गुड एट इट, और वो कर भी लेता है. बट देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वन, ही इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ, he or her doing it for themselves, and second whether they want to pursue it as a career. क्योंकि जब आप करियर के लिए उसको परस्यू करेंगे तो 10,000 में एक कोरियोग्राफर अच्छा बनता है, रेस्ट ऑफ देम हैज टू स्ट्रगल. अगर आप बॉलीवुड के इसमें भी देखोगे तो एक सरोज खान है, बाकी के नहीं है. उनके साथ में कितने सारे लोग होंगे, वो टाइम पे भी उनको कितना कंपटीशन झेलना पड़ा होगा. She stands still because of her love for the dancing and she wanted to do a career out of it. So they are very different things, whether you love or you have some passion or love for something and you wanted to make a career out of it. अभी सेम कैटेगरी है स्पोर्ट्स के लिए. बच्चा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, पब्लिक सोचता है कि अगला सचिन तेंदुलकर तो मेरा बेटा ही है. हाउ मेनी आर देयर एज अ सचिन तेंदुलकर? वेरी फ्यू. जो भी बने हैं सचिन तेंदुलकर के बाद जितने लोग बने हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटीज विद देम. दे डोंट वांट टू कॉपी द अदर पर्सन, बट दे हैव देयर ओन इनबॉर्न टैलेंट्स विद दैट. सिमिलरली अगर आपका बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट यू हैव टू थिंक कि क्रिकेट के लिए भी एक एज है, एक एज लिमिट फिर भी उसको भी है. आपका बेटा कब तक स्ट्रगल कर पाएगा? उसके लिए क्या जरूरी है कि उसका एडवर्सिटी क्वोशंट कैसा है. ठीक है, ये एडवर्सिटी क्वोशंट भी आपको ये डीएमआईटी में पता चलता है. देयर आर 4 काइंड ऑफ क्वोशंट. इमोशनल क्वोशंट कि आपका बेटा इमोशनली कैसा है, आईक्यू इंटेलिजेंटली वो कैसा है. एडवर्सिटी क्वोशंट कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो वहां पे आप कैसे रिएक्ट करते हो. भाग लो या भाग लो, फाइट या फ्लाइट, ये जो मोड है, तो ये आपके अंदर कितना है, दैट कम्स टू नो फ्रॉम योर EQ. अगर EQ स्ट्रांग है तो अगर आपका EQ कम है चलेगा, IQ कम है चलेगा, यू कैन स्टिल सक्सीड इन लाइफ अगर आपका EQ स्ट्रांग है. द लास्ट वन इज क्रिएटिविटी क्वोशंट. आप कितने क्रिएटिवली वो चीज को कर पा रहे हो. अगर आप डांस फील्ड की बात करोगे तो डांस फील्ड में भी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा. मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप कितना अलग दिखना चाहिए, यहाँ तक. तो आपके अंदर या फिर आपके बेटे के बेटी के अंदर वो टैलेंट है, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको प्राइजेस पे मिल रहा है, बट आर दोज इनबॉर्न टैलेंट्स आर देयर इनसाइड? अगर है, वो उसके साथ कोप अप कर सकता है, द काइंड ऑफ प्रेशर्स दे विलिंग टू हैव टू फेस, आर दे विलिंग टू रेडी फॉर दैट? इफ नॉट, यू कैन टेक इट अप एज अ हॉबी, साथ में लेके चलो ना. देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस एंड साइमल्टेनियसली वो दोनों रोड पे बहुत अच्छे से चलते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिकेटर्स हु आर इंजीनियर्स, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री. देयर आर प्लेंटी ऑफ बॉलीवुड स्टार्स हु हैव अदर प्रोफेशंस. So they have certain things in their hand, they are holding certain power कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे आज का भरोसा है, कल का नहीं है. So then you have some backup plan. So those backup plans are mentioned in your report, जहाँ पे आपको करियर ऑप्शंस में कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस में से 3 से 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आपको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा मैच करके आप चल सकते हो. So that gives you added advantage कि हाँ अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ. And now recently I've done a report for a person who is interested in sports as well as in public services. So what I suggest है, वो बोलता है कि मुझे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स सभी स्पोर्ट्स पसंद है, ऐसा भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है. He said I just love doing sports and all. और उसके करियर रिपोर्ट में था कि he is very good for management level.
what I suggested him, you go for sports का जो sports instructor या sports coach रहते हैं, sports managers रहते हैं, you go for that, you will rock with that. क्योंकि इसमें आपका दोनों फिर ये हो रहा है, आपका स्पोर्ट्स का ये भी हो रहा है, उसके साथ में आपका जो मैनेजमेंट स्किल है जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसको भी आप कर सकते हो, and you can do it till age of 60, 70, whatever way you say. So it's good for you ना. Yes, so nice to know. अभी तक मुझे भी जहां तक मालूम था, जनरली हम पेरेंट्स फोकस करते हैं IQ के ऊपर क्योंकि एकेडमिक्स अच्छा हो, EQ के ऊपर ताकि बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, बट AQ और EQ दैट मीन्स एडवर्सिटी कोशेंट और क्रिएटिविटी कोशेंट के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तो अब ये सब डिटेलिंग जो है वो DMIT के बाद ही आती है, एंड इट्स रियली वेरी यूजफुल। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, जैसे अब गन के साथ खेलना बहुत आसान लगता है लड़कों को खासकर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चे को गन पसंद है तो वो आर्मी में जाए, क्योंकि अगर उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट ठीक नहीं है देन दैट चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर आर्मी। सिमिलरली अगर किसी को पायलट बनना है और उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट अच्छा नहीं है, तो एडवर्स सिचुएशन में आजकल आप देख रहे हो फ्लाइट्स में क्या हो रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो बहुत सारे केसेस में आप देखते हो पायलट इजेक्ट हो जाता है, बट बहुत सारे केसेस में दे मेक अ सेफ लैंडिंग विथ ऑल द पैसेंजर्स। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द एडवर्सिटी क्वोशेंट। So this was about these quotient that will be available to you to screen after getting a DMIT test done. So बहुत सारे insights आपने दिए यहाँ पे विनीता जी। तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डॉक्टर विनीता से कि ये DMIT टेस्ट का प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है, हम फिंगरप्रिंट्स कैसे ले पाते हैं। अगर कोई फिजिकली आए तब तो पॉसिबल है, स्कैनर होता है, इजी है, बट अगर कोई दिल्ली में है और जैसे कि विनीता जी मुंबई में है या पुणे, किसी क्लाइंट को फिंगरप्रिंट सेंड करने हैं आपको मैम, तो वो कैसे सेंड करेंगे? There is a very easy procedure to do that. अगर आप सामने है फिजिकली आके करते हैं तो दैट एडेड एडवांटेज होता है क्योंकि यू गेट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन इन जनरल। बट अगर आप कहीं दूर है, कहीं जहाँ से हम लोग फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल आई नीड इज अ स्मॉल, अपने घर पे जो टाल्कम पाउडर होता है, हम लोग ने ये बचपन में बहुत बार किया होगा, टाल्कम पाउडर के ऊपर ऐसे हम लोग हाथ लगते हैं एंड देन वी गेट टू नो अबाउट दी लाइंस। सिमिलर वे हम लोग फेविकॉल से भी किया करते थे बचपन में, तो मैं तो बहुत करती थी, फेविकॉल लेके उसको ऐसा लगा के फिर उसका ऐसा फिंगरप्रिंट्स आता था। तो सिमिलर वे यू कैन डू इट हियर। ऑल आई नीड इज ये जो आपका इतना पोर्शन है उंगली का, दिस मच पोर्शन हैज टू बी कवर्ड। इसके लाइंस अगर ठीक से दिखते हैं आपके 10 के 10 उंगली के, दैट ऑल आई नीडेड। यू कैन गेट दैट फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द टाल्कम पाउडर के ऊपर आप प्रिंट ले सकते हो। टाल्कम पाउडर के ऊपर प्रेस करके जो भी प्रिंट आएगा कैच करो उसको मोबाइल के साथ। यू डोंट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर और एनीथिंग फॉर दैट, बस उसको क्लिक करो, उसका इमेज बन जाएगा, इमेज मुझे भेज दो, दैट्स इट। वेरी इजी प्रोसीजर। अदर देन दैट देयर इज वन सॉफ्टवेयर ऑल्सो, there is one software also to do that. आप वो डॉक का एक सॉफ्टवेयर होता है, that is also you can get it, but you don't need to go because एक इमेज जो है उसमें आपका वैसे भी 180 डिग्री व्यू आ जाता है। so why do extra work for our brain जब इजी सब कुछ अवेलेबल है, राइट? यस, इट साउंड सो सिंपल, मतलब कोई इसमें बहुत तामझाम नहीं है, सिंपल फन वे में यू कैन डू इट। ये सोच के भी कर लो कि चलो बचपन के मजे लेते हैं, तो इट्स रियली सो, कभी सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। सो एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस, प्लीज, इसको बहुत बड़ा कोई टेस्ट नहीं है, बहुत लेंदी कोई प्रोसीजर नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू डिप योर फिंगर्स इन टैल्कम पाउडर और अपने 10 फिंगर्स के फोटोज लेके मैम को सेंड कर दीजिए, या जो भी DMIT एक्सपर्ट हैं जिनसे आप रीडिंग कराना चाहते हैं उनको सेंड कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मैम ये जो इसकी रिपोर्ट आती है वो कितने टाइम में आ जाती है? It's normally take 2 to 3 hours to generate the report once we receive the fingerprints. But for the sake of doing the work, we take at least 1 day's time from the client.
thing is like we have to analyze the report as well. It's not only about the fingerprints. अगर fingerprints ठीक नहीं है तो definitely हमको वापस मंगाने ही पड़ते हैं. But other than that, we have to analyze the report because each report is different. Just like your fingerprints are unique, your reports are also unique. तो वो रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए भी टाइम लगता है. दैट इज 77 पेजेस का बड़ा रिपोर्ट होता है. इट्स नॉट लाइक 2, 5, 10 पेजेस का रिपोर्ट. सो डेफिनेटली उसको टाइम लगता है. सो वी नॉर्मली आस्क फॉर 1 day to get it done. Next day हम लोग काउंसलिंग करते हैं. द काउंसलिंग फॉर मी इट्स लास्ट मोर देन 2 hours sometimes. There are people and also I would like to mention here कि जब आप कोई एजेंट के पास या DMIT एक्सपर्ट के पास जाते हैं, चेक ऑन देयर क्रेडेंशियल्स एज वेल, और उनका अभी तक का रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है. जस्ट चेक दैट एज वेल. Why I'm saying this? Because there are plenty of people in this industry where they are not expert in the field. They are just getting it done. Sometimes तो मुझे अभी recently एक मेरे client का experience था कि वो बंदे ने पैसा लिया and then he is not generating the report also. He is not even giving them anything. The other, I got several people who get their reports done for very small kind of like 500 रुपए 1000 रुपए में करके आए. And they are not getting कि उसमें लिखा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है. वो बंदे ने क्या एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं समझा. And all I need to do, I have to explain them the report. Just because they are very मतलब मेरे पहचान के है, ये है वो है करके, I can do that. But other than that, it's up to you कि you have to know the expertise of that person. जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो MBBS है, MD है, क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है उसके, राइट? उसी तरह से ये फील्ड के लिए भी you have to have the expertise. Yes, I was coming to it. Experience definitely comes with experience. I was coming to it, but in a different perspective. I was about to say this thing कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन दे और अगर समझा दे दवाई क्या है तब तो ठीक है, बट प्रिस्क्रिप्शन दे दे और उसका हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है तो फिर आगे क्या होगा. तो सेम थिंग विल हैपन इफ यू विल लैंड अप इन सम एजेंट और टू सम पर्सन हु इज जस्ट जनरेटिंग द रिपोर्ट. सो क्रेडेंशियल चेक करना बिल्कुल मत भूलिए, डेफिनेटली चेक करिए. एंड वन मोर क्वेश्चन विनीता जी, दैट इज कि ये जो काउंसलिंग है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ डूइंग द टेस्ट, और ऑडियंस में भी आई थिंक पीपल माइट बी हैविंग दिस कंफ्यूजन कि ये बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट है. तो आप इसके प्राइस रेंज के बारे में भी बता दें कि कितने से, क्योंकि अलग अलग जैसे आपने बोला 500 में भी लोग करते हैं. तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट एंड टिल हाउ हायर इट कैन गो? See, for metro cities, the cost can be anything between range of 5,500 to 10,000 as well. Like in Mumbai, there are experts who are doing it for 10,000, 10,500 as well with the same report. बट अगर आप थोड़ा विलेज साइड पे जाते हैं, थोड़ा सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर सिटीज के पास जाते हैं, तो डेफिनेटली रेंज थोड़ा कम हो सकता है, लाइक 3,000. और अभी अब हम लोग जैसे ऑनलाइन कराते हैं, वी आर नॉट फिजिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो अगर हम लोग ऑनलाइन मंगाते तो आधा काम तो आपको ही करना है, फिंगरप्रिंट्स तो आपको करके भेजने हैं ना. सो एटलीस्ट यू शुड गेट दैट एडवांटेज. तो हम लोग उसके हिसाब से भी प्राइसेस कम करते हैं. बट इट्स वेरिंग फ्रॉम रेंज ऑफ at least 3,000, 3,500 to maximum 10,500 as well, depending on the expertise. और आपके साथ आप उसके साथ और क्या combine करके देते हो. Like for my thing, I have already expertise on the other things as well. So अगर मैं उसमें से कुछ करती हूँ, so I definitely charge them separately for that. Not in the counseling. Counseling session is along with the DMIT report itself. In fact, मैं तो लाइफ लॉन्ग रिपोर्ट का गारंटी देती हूँ कि अगर आपको वो सेशन के बाद भी मैं उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करती हूँ. कि अगर आपको उसका रिपोर्ट का कभी अगर आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस लगे कि क्या था, so I provide that recording as well. And even after 2 years also you can ask me कि मैम आपने ये बोला था ना, because I can remember कि मैंने आपको क्या बोला था. Even if you ask me, I can tell you कि हाँ मैंने देखो ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा करना है. So there is no extra charges for the extra sessions as well. It's included in your DMIT test itself. Okay, wonderful, wonderful. This is कि आप तो काउंसलिंग दोगे साथ में और फ्यूचर में भी क्वेरी होगी तो यू विल हैंडल दोज क्वेरीज. एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ डूइंग इट?
you said कि later in life we can do, तो maximum तो I know you can do for 70 also, 80 also, कब कौन अपना कौन सा talent आगे लेके जाना चाहे, but as early as what age for babies, what is the correct age to get it done? The correct age will be around 4 years. When you are in your KG or nursery kind of thing, that's the best age to get it done, because accordingly you can get him into the schools aligned with whatever your expertise are, or whatever his learning style is. So accordingly you can take him, and maximum age is max 65-70 होता है, because उसके बाद ना हमारा ये जो fingerprints है वो faded होने लगता है. जैसे कि बेबीज का रहता है till the age of 3, 3 के बाद, नॉर्मली 3 साल के बाद अपना ये लाइंस क्लियर होना चालू होता है, तब तक ये लाइंस क्लियर नहीं रहता. सिमिलरली जब आपका एज ऑलमोस्ट 65-70 तक जाता है तो ये वापस से फेडेड होना चालू होता है. तो जब तक ये लाइंस ठीक है तब तक ही आप ये कर सकते हैं. सो अराउंड 3.5 एज, दैट इज आइडियल एज फॉर पीपल टू गेट इट डन, बिकॉज जितना जल्दी आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा उतना जल्दी आप उसके साथ कोप अप कर पाओगे. बच्चे हैं ऐसे, दोनों के दोनों ऑडिटरी पीपल, तो वो लोग ने पूरा 10 का टाइम, दे डोंट लाइक टू रीड, दे डोंट लाइक टू राइट. अभी राइटिंग तो कंपल्सरी डेफिनेटली करना पड़ता है, यू रियली कांट डू एनीथिंग, बट रादर देन रीडिंग बुक्स दे जस्ट लिसनिंग दो स्टेप्स. पूरा बुक वो लोग ने सिर्फ पूरा साल रीड किया एंड दे स्कोर मोर देन 85%, बोथ ऑफ देम. एक का 89 आया था, एक का 85.6 समथिंग कुछ आया था. पेरेंट्स को सिर्फ इतना बताया, यू जस्ट डू दिस. उसको, वो बच्चे को अगर उसको रीडिंग पसंद नहीं है, डोंट फोर्स हिम फॉर दैट. यू वांट मार्क्स, उसका टैलेंट है, वो मार्क्स ला सकता है. हैव हिम ऑडिटरी, या तो किसी को ये करा लो, आप किसी को बोलो कि वो रीड करके दे दे आपके बेटे के लिए, पूरा कर लो, लेकिन उसको खाली सुनाओ. लकीली दे ट्रस्टेड ऑन मी कि उन्होंने ऐसा किया एंड दे गॉट द मार्क्स. Yes, actually what happens कि we nag on children and because they are the soft targets, and being parent आपको लगता है authority है कि आप उनको force कर सकते हो, but still I will request each and every parent who is watching this कि आप समझिए इस चीज को कि कितनी डिफिकल्टी होती है बच्चों को भी. अगर वो उनका इनेट नहीं है तो उनका इंक्लाइनेशन उन चीजों पे नहीं जाएगा, उनका लर्निंग स्टाइल नहीं है तो उनको डिफिकल्टी होगी. एंड हम पेरेंट्स इसीलिए हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को कम करें, तभी हम एक अच्छे पेरेंट हैं. अदरवाइज इफ यू आर फोर्सिंग थिंग्स देन ऑब्वियसली रिजल्ट तो आएगा नहीं, और जो होगा रिजल्ट बिगड़ जाएगा. तो बेटर not only for children, not only for career, not only for getting a life partner, business partner, ये overall life में हर एक arena में DMIT will be a useful tool for us. और अभी available है तो why not to use it to make a better future for yourself and to make yourself a better person. So थैंक यू सो मच विनीता जी, आपने मेरे शो पे आके इतना सारा इंसाइट दिया रिगार्डिंग DMIT टेस्ट. कितना इजी है, लोगों को लगता है कि पता नहीं इसमें क्या टेस्ट करते होंगे, कितना टाइम लगता होगा, और हर एक प्ले स्कूल या स्कूल्स के भी आजकल टाइप्स हो रहे हैं. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहां मत कराइए, बट जैसे कि मैम ने कहा है यहाँ पे, डू चेक द क्रेडेंशियल्स, ताकि आपको जो रिपोर्ट मिले वो प्रॉपर मिले, आपकी काउंसलिंग प्रॉपर हो, तभी जाके आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा. तो ये सब चीजें जो मैम ने यहाँ शो पे बताया है उन सब का ध्यान रखिए और फटाफट अपना DMIT टेस्ट कराइए. मैं मैम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आप मैम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट विनीता मैम फॉर डूइंग दैट, एंड फॉर अदर सर्विसेज दैट आई हैव मेंशन्ड, बाकी भी NLP वगैरह वो करती हैं. So thank you ma'am so much for gracing my show with your presence. Thank you so much. Thank you so much for asking me to come over here. Even I got so much clarity कि लोगों को क्या क्या doubts और आते हैं. So even I get to know कि हाँ और क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं. Because normally I got questions कि most of the times it's only about career related और इसके related ही आते हैं. But other than that also there are several other things.
कि जैसे आपका ये शो है, डेफिनेटली मैं भी मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करूंगी कि दे शुड वॉच दिस टू गेट टू नो मोर इनसाइट अबाउट DMIT. थैंक यू. थैंक यू Thanks मैम. for giving me an opportunity. सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड. ये एपिसोड देखिए और फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड का, जहां मैं वापस आऊंगी एक और पर्सनालिटी के साथ विद सम न्यू इनसाइट्स ऑन सम न्यू टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई शो आप और हम सौरभी के संग. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.